Hi, once again, Renu Gihar, Roy Rain, and Dr. Bharti. Dr. Bharti is our, Professor Dr. Bharti, MSW, and my friend Meeta, and my childhood friend Sushma. और हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं. आज टुडे डेट इज द 21st January 2022. What is the time right now? 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. 9 p.m. 9 p.m. This is just a memory. So, actually, it's just we are sitting in a Meeta home. What's your home address, Meeta? Dhruv Nagar Extension. That's it. Address पूरा मत बोलो. Dhruv Nagar Extension. Agra. Dhruv Nagar Extension और क्या आगरा पश्चिमपुरी. And we just got a chance to see Chick Chat, talk, चाय विद पंचायत. आप क्या बता रहे थे? चाय क्या बता रहे थे आप? चाय पे चर्चा. ये तो कोई आपने पॉलिटिक्स बात बोल दी सर. चाय पे चर्चा तो ये पॉलिटिक्स. ऐसा है आजकल पॉलिटिकल माहौल है यूपी में. और हम आगरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही उत्तर प्रदेश का तो हर इंसान नेता है. जिसको देखो वो नेता बना फिर रहा है यहाँ पे तो. हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार इस मामले में काफी कहना चाहिए. खैर हम क्या विख्यात हैं. हम लोग क्या चर्चा करेंगे. हम तो अपने इमोशंस कर रहे हैं. और आपसे भी कितनी साल बाद मिल रही हूँ सर? After 26 years. I will tell you. My MSW time is 1994. Now you should count from 1990. No, you passed out in 96. 96 पास आउट किया था. बट 94 में मैंने एंट्री की थी. एडमिशन है. तो आपसे तो 94 में मुलाकात हुई थी हमारी. Yes, but you passed out in 96 and we are meeting after 26 years. It is now 2022. Now 2024. Roy is having a very good math. 2024 till now how many years happened? 27 years हो गए. 95 में मेरी शादी हुई थी तो 27 years हो गए. तो 27 ईयर. हाँ, हम इसकी शादी में यहीं आए थे. 27 ईयर. देखिए एक साल बढ़ा दिया है ना. 26 आप तो पास ही करा रहे हैं. तो 27 ईयर्स के बाद हम सर को देख रहे हैं. उतनी ही एनर्जी, उतने ही हैंडसम, उतने ही जवान, उतने ही खूबसूरत और उतने ही अट्रैक्टिव. कुछ बातें मैं हिंदी में भी बोल दूंगी. आई एम टेलिंग हिम सेम एनर्जी, सेम स्मार्टनेस, सेम the man when I met him first time. He was the youngest teacher or professor in our class, and I was the naughtiest girl who is always hooting behind of him. And he always said, Renu. Then I said, yes sir. I'm like nothing. When he turned, I said, you see, he didn't look like a professor, he looked like a boy. और लड़के चुप करके. और सर बोलते थे, किसी ने कुछ बोला? सर बोलते थे, सर किसी ने नहीं बोला, रेनू कुछ बोल रही थी. और वो बोल रही थी नहीं बोलते थे, बोल रहा था. I was look like a boy because my hair is a boy cut. I was wearing safari suit. It's not a good like a girl is wearing nice dress. हाँ, वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी like that. तो सबसे अच्छा तो ये लगा कि आप इतनी दूर से जब आपको पता चला आप मुझसे मिलने आए, ये बहुत खुशी की बात है. और मैं 2 शब्द से अमेरिका से इंडिया आ सकते हो. ये बहुत अच्छी बात है कि आगरा के एक कोने से दूसरे कोने को नहीं. थैंक यू सो मच. उस पर मैं एक बात बोलती हूँ. मेरे मन में क्या विचार आया जब मैं यहाँ आई. तो I landed Delhi 6 January. We landed 26 January actually, and after landed I call 2-3 people only. Okay, I call one my friend, female, and after that I feel very negative energy. Then I decided I don't want to talk to her. Sound like a jealous. And after that I call one my friend. Her name is Pratima. When I said, hey, कैसी हो? बस उसका एक शब्द, किधर हो? जल्दी आओ, क्या खाना है? Then I told my husband, she is very nice woman. और उसने चिकन बनाया according to my husband, salty like that. Or she just come. And I just went to her and she cooked nice food. इसको बोलते हैं दोस्ती. कि फोन उठाते बोला किधर हो? जल्दी आओ खाओ खाना. And second, I don't want to say the name because it's okay. I don't want to expect anything from anything. I call one of MSW person. Somebody called me one back, and I called one more MSW person who is very socially active in a group in our MSW group. Group means WhatsApp group. And I did not feel. I feel very dead expression or like what is called
कोई बात में मतलब ऐसा, जब आप किसी से बात मिलने करते के हो, लिए, जब मैंने आपको फोन किया, ये मेरा दिल्ली का नंबर है, ये है, तो दूसरा आता है हम कब मिल रहे हैं, है ना सर? ऐसा है कि जब रेनू का फोन मेरे पास आया था तो मैं भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि जिस प्रकार से रेनू को आप लीजिए, मैं नहीं लूंगी, मेरा फास्ट है उसका फास्ट है। तो हेलो मिस्टर रेन, थैंक यू। तो मैं भी रेनू को अच्छा रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उस समय एक जो इलेक्शन संबंधी जो मीटिंग है वो डीएम के साथ हो रही थी। नहीं, आपकी एक शब्द बहुत अच्छा था, कौन? मैंने बोला सर रेनू बोल रही हूँ, तो आपका दूसरा शब्द था रेनू फ्रॉम यूएसए। मैंने बोला हाँ सर। अच्छा रेनू कब तक हो और कहाँ हो? देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, कब तक हो और कहाँ हो। तो मैंने बोला सर मैं इस समय आगरा में हूँ और शुकाबाद जा रही हूँ और मैं कल लौट के आऊंगी, अपनी फ्रेंड के घर रुकूंगी। अच्छा रेनू मैं आपको कॉल करूंगा कल। That's it, बस मेरा काम पूरा हो गया, मैंने कॉल कर दिया क्योंकि मैं आगरा में हूँ और मुझे मालूम है उस समय जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग हो रही थी इलेक्शन की प्रिपरेशन में। अलग उठ के तुम्हारा एक नंबर, मुझे नंबर याद था, सेव नहीं था तुम्हारा नंबर। ये नंबर जो है मेरा नहीं है, ये तो मैंने अभी खरीदा है। तो जो भी है तुमने ग्रुप में डाला होगा। नहीं, ये ग्रुप में एक्चुअली ये नंबर मैंने सिर्फ इंडिया में खरीदा है जब मैं लैंड किया। मेरा यूएसए का नंबर थोड़ी चलेगा यहाँ। नहीं, तुमने ग्रुप केवल व्हाट्सएप कॉलिंग, मैंने ग्रुप में डाला था सबको नंबर। हाँ तो वही तो मैंने उसमें जब जिसको मुझसे बात करनी हो, अब लोग ग्रुप में सेव नहीं कर पाया था उसको। मेरे सेल फोन में 3 ग्रुप हैं। एक MSW का ग्रुप है, ISS ग्रुप, दूसरा है ISS वॉलेंट्री ग्रुप, तीसरा मेरा है MSW ग्लोबलाइजेशन। मैंने तीनों में शायद अपना नंबर भी छोड़ा था। खैर मैं रेनू के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ मिस्टर रेन। मैंने जो करीब हमारा 2 years एज टीचर एंड टॉट का एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव ऑलवेज फाउंड अ वेरी क्लियर माइंडेड, full of life, vigor, vitality, and she lives every moment, present moment of life, and that's the wonderful aspect of everyone's. Otherwise, people's mind wander in the past and future, always regrets and sorrows of the past and ambitions, future expectations and all. But she lived the present moment, and that's the beauty of her life, and this is called a successful life. Even if you are billionaire, having lots many degrees and all possessions, worldly possessions of life, but if you don't live the present moment, if you are not at peace with your emotions, if you always think that okay, this is the deficiency, this is what I still need more, but she is always full of ambitions and full of satisfactions also. हाँ, ये तो हमने भी फील किया, full of satisfactions also. It doesn't mean that she is not motivated to get higher things and returns in life. But whatever she has got it, she enjoys it, and she always takes it with pride. Thank you so much. और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि I have taught thousands of students so far since the beginning of my teaching career in the university. There are a few students which can be counted at fingertips who make the teachers learn many things from them, and I have learned many things from them. And of course there are some students who always leave indelible mark on the psyche of a teacher. And you know what, my English was very poor. I came to Hindi medium department. Okay, so whenever he gives a lecture, his English is a wow. Then I say, I said, what is this meaning, sir? Then sir said, I will let you know after the class. Then I said, sir, can you tell me right now, sir, so I can understand? Okay, this is the meaning. I never feel shy because I don't know what to do. Okay, if I wait for the dictionary, that time is no internet. Then I will lose the class sentence. Then I always say, sir, what is this meaning actually? And besides this, being born in very, very humble
family in a very small hamlet of a very poor state of India. Yeah. And, you know, and she has struggled a lot. And she Even had my the home. ambition to win over the world. Yeah, I was thinking I need to get out from the Shikohabad. Okay, see, when I was child, you don't know, nobody knows actually. My mother told me when I born, my grandmother, my father mother, she said, she born girl? I don't need a girl, I need a boy. Throw her or you can give to her your mother. And luckily, my mother belongs to very rich family in Delhi. So my mother don't want to give her, so she stopped to giving food to my mother, my grandma. So my mother give to her mother, and when I was age 3 months. So age of 3 months up to 12 year, I grown up in Delhi. So my Delhi is not having a casteism, racism. Delhi is like a multicultural. It's a cosmopolitan city. Yeah. So Delhi, I grown up till age of 12. That's the reason I don't know what is the higher caste, what is the lower caste. It's nothing in my mind. And I grown up a very rich family, good family. My mommy belongs to there. So when I become 12-year-old, my grandpa, my Nanaji and Naniji, they put me to stay in my father's house. When I stay in Shikohabad, they speak a different language. Modi, Moda. I don't know this Modi, Moda means. Because Delhi की language is a different, अलग है. तो वो बोलते थे, "Hey Modi, क्या कर रही है?" मैं बोलती थी, "Oh my God, what is this Modi actually?" फिर धीरे धीरे समझ में आया. Then when I will tell you, you should know. When I came to is class 8, I met her. She is we are childhood friend. She was the only my friend who loves me unconditional love. She loves me a lot. And I will tell you, I never forget her sacrifice. She did sacrifice, or maybe it happened automatically, sacrifice. I was not very brilliant, but I was good student in class. We are same section C, 8th class section C. So what happened? My grandfather is died. My Nanaji died. And my parents goes to the Tervi. So I don't have anybody. So she said, "No worry, I will cook food for examination time, but my name is R, her name is S. R.S. My roll number come first, her roll number come next to me." So, Renu and Sushma. Yes. So, exactly her roll number behind of me. She said, "I will cook food." She belongs to very good family. Her father was education officer. BSA. Basic Shiksha Adhikari. Basic Shiksha Adhikari. Okay. So, Agra? yeah. क्या नाम था उनका? Pramod Kumar Sengar. 88 में थे वो. And she belongs to good family. That time she cook, and we don't have a good house. We have a without floor. She's cleaning our house. She cook food for me, my brother. She sleep together, and she's sitting and watching me all the night. I'm study, and examination time. She's sitting next to me, and I was writing, and I show Sushma, and only one exam. They put her a different. That was the year she failed. She lost her exam. After that, her father moved to Agra. She always in my heart. And okay, and she loves me. I'll tell you one. She must know. One happened. That time I don't know still she have or not. She told me she have a क्या बोलते हैं उसको जो सोते सोते चलते हैं? वॉकिंग इन अ ड्रीम. सोते ना. एक बार इसने बताया, ये यादव कॉलोनी में थी, ये सोते सोते सपने में चल के मेरे आधे रास्ते तक घर में आ गई. बताया था ना तुमने. बाद में इसकी आंख खुली, ये पीछे भागी. यस. अब ये बातें कहाँ याद दोबारा दोहराई जाएगी ना. इतनी खूबसूरत यादों को न ताजा रखा जाए तो कैसे. तो वो यादें थी. फिर इसके बाद जब मैं आगरा MSW के लिए मैंने दोस्तों, रेनू से एक बात हमें सीखने की जरूरत है कि रेनू किसी भी भाषा में बोलती है, हिंदी में, इंग्लिश में. कोई प्रॉपर वर्ड मिले न मिले, ग्रामर का रूल याद हो न हो, समझो ये ब्यूटी है एक ह्यूमन बीइंग की कि अपने इमोशंस को किसी भी भाषा में, किसी भी नियम की. देखिए क्या होते हैं, ये जो भाषा होती है ना, 16-17 ये भाषा जो होती है हमारे विचारों की और भावनाओं की, आप ये समझ लीजिए कि एक पिंजरे की तरह होती है. हम अपने विचार और भावनाओं को
उन्मुक्त होकर जो एक्चुअल है उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते भाषा के बंधन की वजह से। तो जो हमारे विचारों का और भावनाओं को जो पंछी है उड़ नहीं पाता इस भाषा के नियमों के चक्कर में। लेकिन ये भाषा के नियम और भाषा की शब्दावली रेणु कभी इसकी मोहताज नहीं है, ये याद रखिए। लव यू, थैंक यू। बिकॉज अभिव्यक्ति क्या है, देखो आई एम अ परफेक्टली हेल्दी, यू सी। और ये मालूम है ये लोग कौन कर पाते हैं ऐसा, जो लोग बनावटी जिंदगी नहीं जीते। द पीपल हु लिव द लाइफ इन देयर ओरिजिनलिटी एज ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग, जिन पर किसी आर्टिफिशियलिटी के उसके कोई लेप नहीं होते। जो अंदर है वो बाहर है, वट एवर इज इनसाइड इज आउटसाइड, है ना। कहते हैं ना जैसा तथा जैसा कहना वैसा करना, कथनी एंड करनी। यस, और नहीं, और जो भीतर है वही बाहर भी है। यही रीजन होता है कि जब आप जो होते हैं, जैसे जैसे आप रेणु की बात सुनेंगे मैं आपको व्याख्या करूंगा कि क्या क्या हम सीख सकते हैं ऐसे। देखिए मन की जो बात होती है वो आप जब बोलते हैं ना तो दो चीजें होती हैं, एक तो खुशी होती है। और एक बात समझो, मैं रेणु की कभी तारीफ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास तारीफ होती नहीं है, मैं शब्दों को वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो वाकई में वो है। मुझे तारीफ की मोहताज भी नहीं हूँ, मैं तारीफ की पता है क्या, जो लोग ज्यादा से ज्यादा, जो लोग मेरी ज्यादा तारीफ करते हैं तो पता है क्या मैं बोलती हूँ लोगों से, भाई सीधे सीधे बता क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो पहले बता दे, मिलने वाला मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल से शायद ये तो रेणु बता पाएंगी, अगर रेणु को कोई डांट सकता है तो मैं ही डांट देता। परफेक्टली, माय गॉड। आपके आने से पहले टेल मीता व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू टेल व्हाट आई सेड। कहा था कि सर की पहले तो आपकी पर्सनालिटी की काफी जो भी क्वालिटीज थी आपकी वो एक्सप्लेन की इन्होंने, उसके बाद क्या एक्सप्लेन की बता देना, उनको पता तो सर बहुत स्मार्ट लगते थे, वो लगते नहीं थे, प्रोफेसर है। और पीछे से मैं ही हुटिंग करती थी। और ये नहीं बताया शर्मिंदे कितने थे। हाँ, ऐसा है। बताया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बात करीब सितंबर 94 की है, जब मैं यूजीसी जीआरएफ नेट करने के बाद में गेस्ट लेक्चरर अपॉइंट हुआ था यूनिवर्सिटी में आगरा में। तो पहली क्लास लेने में गया। क्या बात है। तो मैं पूरी क्लास में अंत तक वो जो लेक्चर थिएटर लेक्चर हॉल था उसमें जाकर के अंत तक जाके और फिर मैं वापस आता था। तो मैंने देखा कि मैं जब वापस लौट रहा था अपने बोर्ड की ओर, तो पीछे से आवाज मेरे पैरों के साथ मतलब सिंक्रोनाइज करते हुए तो मैंने कहा कोई मुझे फॉलो कर रहा है क्लास। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो रेणु। तो ये वाकया मैं आज तक नहीं भूला। और साथियों मैं बताऊं, मैं एक उसकी वजह से मैं आईसीयू में था। ये वाकया मुझे उस समय याद आया, रेणु मुझे उस समय याद आई कि देखिए वो एक फोटोजेनिक मेमोरी थी, वो पहली क्लास और ऐसा कोई स्टूडेंट, वो भी लड़की। आपको मालूम है इंडिया में तो लड़कियां बड़ी वो रहती हैं, कभी बात नहीं कर पाती, और टीचर तो उनके लिए वो होता है बहुत ही ऑथोरिटेटिव कहना चाहिए मोनिका। तो ये ब्यूटी है, ये सीखना चाहिए, ये जीवन जीने के कुछ तरीके हैं, खुश रहने के तरीके हैं। इतनी खूबसूरत यादें आज ताजा हो गई। आप आई डोंट बिलीव व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी रियली। और एक और बात मैं बताऊं, मैंने शायद रेणु से पूछा था तुम क्या बनना चाहती हो, तो रेणु का सपना उस समय भी बहुत ऊंचा था। जो हमारे जो आईएएस ऑफिसर बोला था मेरे को, आईएएस ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, शायद आपको पता नहीं है। प्री क्वालिफाइड 2002 में आई डिड सेलेक्ट फॉर आईएएस ऑफिसर। लेकिन तुमने कोई बॉम्बे का ख्याल? हाँ, बॉम्बे में गई थी एजुकेशन रिसर्च ऑफिसर 1994 में। तो उसमें मेरा सेकंड टॉप किया था मैंने इंटरव्यू पर। सुषमा ये और मैं गए थे। ऐसा है इंडिया में जो मैरिज होती है वो लड़कियों का एक वो होता है कि अच्छी से अच्छी मैरिज करके अच्छे से अच्छी लाइफ लीड करें। लेकिन शुरू से ही रेणु का ये था कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो। हम तो शादी का सपना नहीं देख सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ हो। सर आपको पता नहीं होगा, मेरे पापा दारूबाज बेवड़े,
ओके और वो जो लड़के मुझे देखने आते थे, मेरे को एक बात याद है कि मेरे पापा ने बहुत अच्छी फैमिली में एक लड़का दिल्ली में देखा था। अब आप देखिएगा अपने पिताओं के बारे में कोई ऐसे बोल रहा है रियली नहीं देखिए। अब आप सुनिए टीचर के बारे में, मेरे बारे में कुछ बोलना होगा बोल देगी, ये इसकी क्वालिटी है मीता। आप इसको कोई मत समझिएगा, पता है मेरे बारे में कुछ बोलना होगा बोल देगी अभी कैमरे पर। Look, my father is alcoholic, you know, okay. But you know what happened when I was studying in Agra? तो क्या हुआ, पापा के एक दोस्त थे, मैं नाम कैसे बताऊं, नाम भी याद नहीं आ रहा, आगरे के ही थे। उनके बेटे बहुत पैसे वाले थे, उनका एक ही बेटा था जिसका पैर खराब था। तो पापा ने बोला तेरे को कौन सा पैदल चलना है, गाड़ी में बैठ के चलना, कर ले से शादी, आदमी मेरा बिजनेस भी ठीक कर देगा। मैंने बोला आप ही कर लो शादी, मैं तो नहीं करूंगी, मेरे को तो ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी जिसके साथ खड़ी होकर चल ना सकूं। तो वो लड़का आया तो पापा ने बोला मेरी लड़की है और वहां रहती है आगरा हॉस्टल में, तेरे को पटाना पटा ले, खुली छूट है, मैं दुनिया का पहला बाबू जो बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो लड़का मुझे बोलता है आप ना वो पिक्चर देखो साजन, जिसमें वो संजय दत्त लंगड़ा होता है यार। तो साजन पिक्चर देख ली मैंने उसके कहने के चक्कर में मम्मी पापा के साथ, और देखा वो साजन पिक्चर है, माधुरी दीक्षित को बचा नहीं पाता है, और वो मेरा बच्चों जैसा माइंड। मैंने बोला मैं तो इससे बिल्कुल ना करूँ, ये तो मेरे को रक्षा ही नहीं कर पाएगा मेरी। मैंने बोला अब तो तू फोन भी मत करियो ना आइयो इधर। तो पापा ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर पापा मेरे लिए एक लड़का दिल्ली में देखा, तो पापा ने क्या करा, पापा को चढ़ जाती है 1-2 गिलास के बाद, भाई उनको चढ़ गई बेवड़ों की तरह, और वो करने लगे। उन्होंने बोला कि इनसे कौन शादी करेगा, अब भैया अब किसी को अच्छी लड़की चाहिए तो बाप से शादी करेगा या बेटी से करेगा। तो वो बाप देख के बेटी का, वो मुझे देखने ही नहीं आया बंदा। पापा से बोलता पहले ये बताओ, वो लड़का IAS ऑफिसर, पता बाद में वो जज बन गया, वो लड़का जज है कहीं आजकल। तो उसने बोला पापा को आपकी लड़की देखने में कैसी लगती है, तो पापा बोलते चलो प्रगति मैदान चलते हैं। प्रगति मैदान में एक लड़की के बाल कटे थे, थोड़ी सांवली थी, तो बोलते हैं ऐसी लगती है कुछ कुछ, बोलते ऐसी लगती है तो आपकी लड़की काली है। पापा बोलते हैं काली नहीं है, देखो इंडिया में पामेला बोड्रेज भी तो वो मिस इंडिया बनी है, उस समय पामेला बोड्रेज हुआ करती थी। नहीं, पापा ने हमेशा मेरी एक तारीफ की है, वो कभी नहीं बोलते थे मेरी लड़की खूबसूरत नहीं है, हमेशा बोला वो सबसे खूबसूरत है। मेरी माँ को चिंता रहती थी काली से शादी कौन करेगा हमेशा, और शादी जैसी चीजें मेरे दिमाग में इसलिए भी नहीं आती थी कि भाई कौन करेगा, हमारे बाप के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, कौन बारात लाएगा, कहाँ से आएगा, बिकॉज ही इज लाइक अ फक्कड़, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उस समय फिल्में आई हुई थी, ये आग कब बुझेगी, खून भरी मांग, तो दहेज जला जला के मार देते हैं। तो उस समय मैंने फिर ऐसा जोश आया था, जो लड़का देखने आता था मैं बोलती थी ये काम करो पहले उसका इंटरव्यू लेना है मेरे को, और जिसका इंटरव्यू लो, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी की हिंदी अच्छी नहीं। तो मुझे आज भी वो लाइन याद है, इंग्लिश की एक लाइन। मैंने बोला अच्छा एक बात बता, तू हिंदी ट्रांसलेशन कर इसका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो वो लड़का कानपुर का बोलता है हमको तो पता ही नहीं है इसका। मैंने बोला अच्छा तो फिर एक काम कर, हिंदी में बोलती हूँ, देख पगली हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, उसी की हिंदी बोल रही हूँ। अच्छा बोलो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बोलता हमको डॉक्टर की जगह वो डॉटर लिख रहा है, और मैं पागल की तरह हंस रही हूँ। वो बोलती उसकी माँ से, उसकी माँ बोलती है तुमको कोई लड़की मिली नहीं, ये काली मिली। मैंने बोला अच्छा तेरे बेटे को तो डॉक्टर लिखना नहीं आता। देखिए दोस्तों, जो इंडिया में जो पैट्रियार्कल समाज है, पितृसत्तात्मक, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड का है, इंडिया का भी है, लेकिन इस प्रकार की जो ऑडेसिटी है ये रेणु जैसी लड़की नहीं कर पाती है ना। फिर तो क्या हुआ सर बताती हूँ, मैंने ठीक 70 के जगह 75 लड़के फेल किए थे। I did failed 75 boys for marriage. And after 75 boys who were failed, rejected by Renu, now Mr. Roy. No, you should ask him. I rejected him first time. Yeah. Roy, tell. But ultimately, no, he ultimately didn't. You like ये बंदे ने हार नहीं मानी. You tell what happened when I met him first time. When I met him, tell. You tell. No, when I met you, how you feel? Felt like I was having an interview. No, before you met me. Before. When I was so when I was walking, you waiting for me. You were after her. You were after her very much. No. You see how is it reacting? You tell from the beginning how we. No, when I saw him from the phone, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। तो क्या होता है, फोन पे तो पूरी बॉडी नहीं दिखती, चेहरा दिखता है। When I saw him in a phone, I saw his eyes. I like it. His eyes is very intense. Mesmerizing. Yes. Then I saw, oh. Intoxicating. Then I said, let's meet.
तो ये गांव में रहता, मैं ह्यूस्टन सिटी में. एंड ही सेड ओके आई एम कमिंग. ही इज ड्राइविंग 3 hours. गांव से गाड़ी चला के शहर में आ रहा है बंदा. आया तो मैंने, मेरा जहां मैं काम करती थी, मेरा ऑफिस पास में था, मैंने बोला इज 7 minutes. So I reach how many minutes late? About 45. After 45 minutes, when I was reached next to him, what was your reaction? Then you show Feel me like first. I was lifted in the air. He was, when he saw me, he fell in love I fast. didn't even remember standing up. I didn't feel. It felt like I was floating. Floating in the air, in the sky, wide sky. He falling. You know, Bollywood films type of story. He fall in love. Just he You saw know, me. these kind of stories are never, picturized by Hollywood. But Bollywood's the pet subject is this one. You know what happened? When he saw me, he's looking so handsome. That time, ये क्या होता है, हम लोग जब किसी से डेट से जाते, मिलने जाते हैं, बंदा स्मार्ट कपड़े पहन के जाता है, ये ऐसे उठ के चला आया. Americans are not like that. American में क्या होता है, घुटना पहनना, बटन ऐसे कुछ भी कपड़े पहने हुए उठ के चल देते हैं. Then he wear like a faded color of pant or like that. Casuals. I'm classy. अब मैं मतलब बाथरूम में भी जाऊं तो खुद को भी अपनी अच्छे से कपड़े पहन के सोते समय, जो कैप लगा रखा है उस पर भी क्वीन लिखा है. मैं सोते समय भी देख ऐसे देखती हूँ कि बस फर्स्ट क्लास उठूं बाथरूम में. किंग का लगा हुआ है. अच्छा. यस, देखिए ओह. आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी रेनू की ड्रेसेस से क्या? कि इनके दोनों की ड्रेस लगभग अपर रहेगा या इनर जो भी रहेगा Match करेगा. मैचिंग. रेड नीस दोनों का रेड रहेगा, ब्लैक नीस दोनों का कुछ न कुछ मैचिंग रहेगा. और अब तक का मैंने यही नोटिस किया है सारी वीडियोस में. He is doing this one actually. अच्छा. He is the one who do all ये that. एक heavenly match कहते हैं. कभी ये कुछ भी, whenever he went to the shopping, anything, he is looking for me. I bought this one, I'm voting for you this one. I said, don't expend money. And you know, when I look after that, when I met him first, he said, what do you like? एक इम्प्रेशन में मैं तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक पागल है क्या. He's not my type actually. एक मिलियन लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हुई है इंटरनेशनल 40 कंट्री में. सबके साथ डेट किया, मीट किया, but nobody touched my mind and heart. You see, if I'm going to marry, I want to feel love. I want to feel. Without love, I cannot allow a man who can touch my skin. And how can I live with someone whole my life? Life is so most beautiful. And I start loving myself when I left India. When I was in India, and I was super dumb because I was thinking about other, like I'm become like a, before I marry him, when I was in India, I was thinking, oh, क्या करना है यार जिंदगी में, अब कुछ नहीं हुआ ना, अब कुछ तो मदर टेरेसा की तरह ना कहीं पे जॉब मिल जाएगा, वही करेगा. फिर लगा नहीं, ये करना है. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन डिप्लोमा एंड मास्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, 3rd मास्टर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से. जो सोचा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, वहां चाय पीनी है, वहां जाके लड़कों से लड़ना है, वो आगरा में जो नहीं हुआ ना वो वहां करना है, वो सब किया मैंने अपनी लाइफ में. दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चर इज क्वाइट डिफरेंट सर. दोस्तों, इंडिया में जो दिल्ली है कैपिटल है देश का, और वहाँ जो यूनिवर्सिटीज कैंपस है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ग्लोबल है. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का कैंपस है. जहां पर आप जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस फील नहीं होंगे वहाँ. और सर नॉट इजी टू एडमिशन ओवर देयर, इट्स वेरी हार्ड. एंड इट वाज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में मैंने फाइट किया था सेकंड टाइम. फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था लॉ में, LC1 लॉ सेंटर 1. ओके, तो मैं बता रही थी आपको, इन्होंने बोला मेरे को, वुड यू लाइक टू कॉफी एंड टी. मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू बी विद हिम इन माय लाइफ, सो व्हाई शुड आई एक्सपेंड हिज मनी. I always think about, if I'm not having any relationship till today, कोई मेरा क्लाइंट नहीं है, I never order. उसका एक पैसा नहीं खर्च कराती आदमी. जब कोई मेरा ऑफिशियल रिलेशन नहीं है आपके साथ, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, I don't want to expend your money. I can expend my money from my pocket. So I didn't buy anything. वहां पे आप पानी भी लोगे ना तो पानी भी $10, $15, $20 का तो मिलेगा. So I thought, why should I expend his $2 and $5 and $20? The waiter came, then I said, can you give me tap water? वो जो टैप वाटर होता है नलके से, वो फ्री होता है. तो he give tap water. Then ask him, what did you order? Tea. Green tea. Okay. तो मैं बोला I need to go. Then he said,
Okay, he speak very slow. I said, what? What? मैंने बोला इतनी स्लो बोल रहा है, मेरे तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा। और ये रफ, अब आदमी इतना रफ बन गया कहाँ से? कुछ तो अट्रैक्ट लगना भी चाहिए। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज लुक्स योर whatever you looks. Second impression, your intellectual when you open your mouth. Third impression, your character. जब आप रहते हैं साथ तब पता लगता है कौन कैसा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब दे दिया, खराब सा कपड़े पहन के। Then you know what happened? And I said, I was start talking to him. Look, I'm not looking boyfriend. Then you know what he said? What did he say? I'm not looking for a girlfriend either. That I like it, but I didn't attract. ठीक है, सबसे थोड़ी शादी कर लेंगे। For a soulmate. या तो ठीक है, अभी ऐसे तो बहुत लोग मिलते हैं ना, अब सब हमको पसंद करेंगे, we cannot marry everyone. After that, I asked him so many questions. I asked दोनों ले जाओ। so many questions I asked him. Okay, then ये इसने ना बात में he said, I said, are you okay, healthy? Are you healthy? He said, I'm healthy. I have sometime my body pain. I said, whole body pain, all body part pain. ऐसे बोला। सारी बॉडी में पेन होगा, पहले पता कर लो भाई, फिर जिंदगी ना खराब हो जाए। शादी से पहले पूछने में क्या बुराई है? I asked him like, every part body having a pain. He said, yeah, but some not having pain. Then I understand. And I said, and after that he said, what did you ask? This is the interview. You said like that? Yeah. What did you say? I said, is this like a job interview? And what did I reply? At that time? Yeah. Yes. Yes. Yes, this is interview. And I can only be your friend. I said, I can only be your friend. And I'm not your type. मैंने ये नहीं बोला कि तू मेरे टाइप का नहीं है, बिकॉज मैं कभी सामने वाले को नीचे नहीं दिखाती। मैं बोलती आई एम नॉट योर टाइप, बिकॉज वी कैन बी ओनली फ्रेंड। फिर ये और इमोशनली धीरे धीरे बोले, मेरे को तो इमोशनली आई डोंट नो व्हाट हैपन, माय टीयर कम्स, मेरी आंख से आंसू नहीं आता कोई मर जाए, और पता नहीं आई डोंट नो व्हाट हैपन, माय टीयर कम्स ओनली वन आई दिस आई, मोटा सा टीयर आया। मैं बोली व्हाई टीयर इज कमिंग, व्हाई टीयर इज कमिंग। फिर उसके बाद जब मिली तभी टीयर निकलता था। कुछ जादू किया इसने मेरे ऊपर। I met him 2nd August. Okay, 1st August, the guy named, what is the guy name? William. He met me. Yeah, he met me and he proposed me first. I like you. I want to marry you. So I was quiet. He's so presentable and financially he is good. His business, and he went to his home and he called me video to introduce his sister. And he said, I just sold all the house because you tell me which state you want to buy house, we will buy. I was quiet. Na maine हाँ किया ना किया. I was just quiet. So he is going to meet me 2nd August. 2nd August, then he called me. I cannot meet you 2nd August. If you like to come with me for 1 week, I'm going for my business trip. And I said, no, I'm not gonna meet you because I met you only once. एक बार मुलाकात के बाद किसी के साथ में 1 हफ्ते के लिए नहीं जा सकती. I don't trust anybody. I trust myself. But why should I go with you for 1 week? I met you only once. So I didn't go. 2nd August, he came to meet me. You see, I'm so safe, thank God. He's the most wonderful man in my life. He's the best person. After marriage, I realized. And you know what happened? I said, we can be only friends. He said, okay. Talk. I feel like he's so poor. So I said, I can help you whatever you need, right? And I can be your best friend. Last word. First I said I can be your friend, and last word when I say goodbye, I don't know, I feel emotionally like, ऐसा होता है ना, कोई अपना बंदा होता है फैमिली का, तो हम उसके पैसे नहीं खर्च करवाते, जैसे अपने से छोटे होते हैं तो ये सोचते नहीं तुम मत करो हम करते हैं, like that. I feel with him like a family. So he said, I want to drop you. I said, no, I have my car, there is parking number 2nd floor, and he parked his car somewhere. He said, no, I will drop you. I said, no, I'm not. He go out and he opened the door of his car. And he have a Cadillac car. You know, nobody impressed me any kind of the car. And for me, I know car means 4-wheeler. कोई आदमी मुझे कार से impress नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी महंगी गाड़ी है. So what happened?
there is a French restaurant called Labadaline. He said, you did not eat anything. You did not eat. I said, dinner time है, घर जाके खाना भी बनाना है. I need to cook the food for me. Then I said, ये बार-बार जिद कर रहा है. Okay, let's go. I said like that. So he said, where? I said, go there. Is a Labadaline. Then we sit together. He ordered seafood for me, for this. There we connect something little bit. 1 hour we sit together. 1 day, 2 dates. Little bit connect. After that, he is going to drop me my car, sir. His stomach is like that, big. अब कितने बड़े पेट से कहाँ से प्यार होगा? कहीं से तो पेट ने बोला ना आपको फिजिकली बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है सर. ये फैक्ट है. तो अब ये he want to do. अब मैं इसके पेट को हक किया ऐसे करके. Okay, bye bye. Because we become best friends, so we can hug. So I hug his stomach. That's it. Another teacher. I never ever see his message. He proposed me same day on message. I'm the man who's you are looking kind of the man. I'm the right person for you. A second tear came when we said bye. Yeah, I told you whenever I made a tear coming. I told you. पता नहीं इन्होंने क्या किया मेरे लिए. मैंने बोला रेनू क्या यार कभी रोती नहीं है यार. कुछ भी हो जाए. देखो दोस्तों, हस्बैंड वाइफ को वे हमेशा प्यार तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करते. ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर इंडियन कल्चर. Yes, yes. ऐसा होता है और एक दूसरे के लिए वो जान भी देने को तैयार होते हैं. और इंडियन हस्बैंड्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते, वाइफ भी कभी एक्सप्रेस नहीं करती. वो कुछ भी बोलेंगे, कभी ये नहीं कहती कि ये मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है. कहती है पब्लिक फंक्शन में, लेकिन कभी भी अकेले में वो ये कभी नहीं कहते एक दूसरे को. पब्लिकली नहीं कभी कहते. और वो एक दूसरे के लिए वो 7 जन्मों तक के कसम खाए बैठे होते हैं, साथ फेरे लेके, है ना. तो एक बात ध्यान रखें कि कोई भी रिश्ता हो, आपके दिल में कितनी भी फीलिंग भरी हो प्यार की, एक्सप्रेस करना जरूरी है. क्योंकि कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि आपके दिल में कौन सी, ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में, कौन सी फीलिंग, कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो आपके माइंड में ये देख सके कि कितना किसके प्रति प्रेम है. इसलिए अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो उसे व्यक्त करना सीखें. जरूर एक्सप्रेस करें, ओकेजनली करें, ज्यादा ना करें. कभी कभी जो मुख्य मौके होते हैं उन पर जरूर करें, और पब्लिकली भी करें. हम तो भैया 24 घंटे करते हैं. आई लव यू सो मच. खैर, और इससे प्रेम बढ़ता है ना. और जो प्रेम की सीमा होती है वो आपके जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो बाउंड्रीज होती है उससे आगे जाती है. वो इमोशंस पर अनकॉन्शियस लेवल तक चली जाती है माइंड के. थैंक यू सो मच. हमारी बातें इतनी खूबसूरत आपके साथ जो हो रही हैं, और आपकी वही खूबसूरत मुस्कुराहट देखो जरा, मैंने बताया था है ना. खैर देखिए साथियों, एक और बात ध्यान रखें कि खूबसूरती जब दिखती है आपको दूसरी चीजों में, ये केवल जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं तभी वो दिखती है हमको. नहीं तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को हम कह देते हैं कि कोई पसंद नहीं आया. इसलिए हम अगर अंदर से ब्यूटीफुल हैं तो हमको दूसरे लोग भी अच्छे लगने लगते हैं. तो रेनू, कहते हैं ना, एक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर. देखने वाले की खूबसूरती जो होती है वो नजारों में नहीं, उसकी नजर में होती है. तो रेनू जब किसी को देखती है सुंदर, तो वो उनकी अपनी सुंदरता है. ये मेरी हंसी नहीं है सुंदर. मीता देख ले कैसे बोल रहे. मैंने आपको क्या बोला. देखिए वैसे जीवन में जो कमिटमेंट रिलेशन होता है वो तो पति पत्नी का होता है. मैंने पहले भी बोला था, फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ इज अ कमिटमेंट रिलेशनशिप विद अ लव. बट क्या होता है, मोहब्बत, we fall in love many times with the few people, or many times with the some very specific people. It depends. Some people have a beautiful eyes, some people have a beautiful smile, some people have a nice dress. You know, my husband after marriage, he's scared. He's thinking you will leave me one day, because he saw me, I'm talking to many handsome people or many good people like me. Then I said, look, you're my husband. Nobody is your comparison. But I'm a kind of woman. When I like somebody's dress, I will tell, I like your dress, it suits you. After that, I forgot.
आई डोंट, मैं घर में किसी चीज की, किसी भी इंसान की तारीफ नहीं करती, बोल दिया खत्म. I met in a Kumbh Mela one Swamiji, I don't know, I have his photograph, I'll show you. He all Kumbh Mela, what is the Kumbh Mela kaha? Allahabad mein lagta tha. He was the only man, he's the most handsome Babaji, most handsome looks. उसका फोटो देख के ना I feel fall in love. Fall in love means का मतलब जानती हो? You fall in love like you will see him and you speak. देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो इस प्रकार का जो प्रेम है, कभी हाँ, किसी में आपको, इसको हम आध्यात्मिक प्रेम, ये देखिए हम इसको कहते हैं एक लविंग काइंडनेस. यस यस, ये पूरी दुनिया के प्रति, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के प्रति, ये लव से परे होता है. yes. इसको हम कंपैशन कहते हैं, yes, करुणा yes, कहते हैं. yes, yes. और ये जो होता है, देखिए जो प्लेटोनिक लव एंड स्पिरिचुअल लव. देखिए आप स्पिरिट मानते हो ना मानते हो, लेकिन जो कहते हैं ना यूनिवर्सल काइंडनेस शो करना हर जीव के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर चीज में सुंदरता को खोजना, देखना और उसका भला सोचना और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, उसके प्रति अच्छी फीलिंग्स रखना, ये उन्हीं व्यक्तियों में आ पाता है जो अपने जो लस्ट से, जो अपने अपोजिट जो जेंडर वाले लोग हैं उनकी जो फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन से परे जाकर के सोचते हैं. इसको हम यूनिवर्सल काइंडनेस, कंपैशन, करुणा कहते हैं. और ये करुणा आप रेणु में पाओगे. अरे मुझे नाम भी याद आ गया, बाबा बालक नाथ कश्मीर से हैं. वो जो लोग मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी विधवाओं के लिए वो काम करते हैं. नाम याद आ गया. तो मैं उनसे एक्चुअली क्या था, लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगा रहे थे. तो मैंने बोला अब मैं पता नहीं जीवन में कभी यहाँ आऊंगी कि नहीं आऊंगी इंडिया, तो आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस. आई सेड आई वांट टू सी हिम एटलीस्ट वंस. तो लाइन वाइन लगी थी. मैंने बोला, वो बोलते हैं मैडम आपको लाइन लगाना पड़ेगा. मैंने बोला मेरे को यहाँ पे अपना हाथ दिखाने नहीं आई हूँ. आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट नीड एनीथिंग. तो मैं लाइन, तो मैंने बोला बाबा को बोलो कोई आपसे मिलने आया है. तो बोलते वो ना अंदर हैं. तो मैं अंदर डायरेक्ट चली गई. वो किसी से बात कर रहे थे, कोई दुखड़ा रो रहा था. ज्यादातर लोग दुखड़े रोते हैं अपने. तो मैं ऐसे खड़ी, वहां सारे बाबा खड़े हुए थे और वो जो बाबा हैंडसम वाले थे ना, वो कंबल में ऐसे थे. मैंने बोला बाबा बालकनाथ की जय, मुझे नहीं पता आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ आपकी एक झलक देखनी है स्वामी जी. आप जितने भी पूरे कुंभ मेले हैं उनमें सबसे हैंडसम है आप. ये बात आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो ये अंदर की बात अंदर रह जाएगी. क्योंकि बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति अगर लेनी है तो मन की बातों को बाहर निकाल के मरो, मन को खाली कर दो पूरा. ये मैंने कभी ऋग्वेद में पढ़ा था. तो उस दिन से मैंने आज तक अगर किसी के प्रति प्यार है, नफरत है, तो बोल देती हूँ. और वो बात बोली, बाबा को इतनी शर्म आई, इतने खुश हुए, उन्होंने पूरा कंबल ओढ़ा. तो मैंने बोला बाबा जी आप मेरे पितर के समान, पुत्र के समान हैं. आपको जो प्यार था वो दे दिया, बस अब आपके साथ एक सेल्फी फोटो खींचनी है. 5-7 ठक ठक फोटो खींचे. तो बाबा का स्वामी जो जितने लोग खड़े थे ना, वो बोलते हैं आप इंडिया से नहीं लगती हो. मैंने बोला, मैंने कपड़े भी अजीब से पहने थे. ये फोटो बहन जी भेज देंगे आप? बाबा का इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड कर लिया. और वो जो फोटो मैंने जो डाला था ना, खींचा, वो बाबा के इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में आज भी लगा हुआ है. इंस्टाग्राम पे जाना, बाबा बालकनाथ, वो फोटो है मेरा अभी भी. तो दोस्तों हम जो है ना यही पद चिन्ह अपने छोड़ जाते हैं, है ना. तो ये व्यक्ति के अजर अमर होने का एक तरीका होता है स्मृतियों में और अपने जो कॉन्शियसनेस में, दूसरों की कॉन्शियसनेस में. तो हमेशा दूसरों की कॉन्शियसनेस में जगह जरूर बनानी चाहिए. और रेणु जहां जाती है ऐसा कर डालती है. आपको एक चीज महसूस हो रही है जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तो बॉडी के अंदर एक लार में ना एक सलाइवा होता है. जब आप खुश होते हैं तो एक टेस्ट आता है. ऐसा है कि ये जो सेरोटोनिन और जो एंडोर्फिन्स और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इसके लिए फिजियोलॉजी जिम्मेदार होती है. और इतनी अच्छी मेमोरी जो मैं आपसे ताजा कर रही हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस, आई एम फीलिंग सो ग्लैड, आई एम फीलिंग सो गुड. और देखिए मित्रों, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी आपके विचार हैं, उनको आप छोटा मत मानिए, उनको आप रिलीज करिए. कैथार्टिक होते हैं, ये आपको मुक्त करते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन से, आपके बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उससे. आप पॉजिटिव जब तक नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने पूरे इमोशंस को, आइडियाज जो अंदर कन्फाइंड है, उनको आप बाहर लेट आउट नहीं करते. और ये रेणु की पर्सनैलिटी की खूबसूरती है.
थैंक यू। मैं आपसे एक बात और बोलूंगी, हमेशा मैं सबको बोलती हूँ और मैं बोलना भी चाहती हूँ कि आई यूज्ड टू व्हेन आई मैरी माय हस्बैंड, all business community in the world, people thinking, oh, Renu marry, he must be billionaire because she rejected many rich people. So I said, Roy, what to do? What people are thinking? मैं पापा के पास अभी गई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, you should tell. मेरे पापा को लगा किसी बिलियनियर से शादी की है, तो मैंने बोला जब मैंने इनसे शादी की थी, when I marry you, how much money you have? $200. $200. मेरे पास $1 million थे मेरे अकाउंट में, इसके पास $200 थे मेरे पति के पास। तुम इतनी रिच हो। हाँ। देखिए दोस्तों, ये रेनू की अपनी मेहनत है और अपना स्ट्रगल है और अपने एम्बिशन है और अपना शेयर एक आपने डेडिकेशन है। बीच में इंटरप्ट कर दिया, आपने पूछा कि रेनू आप काम क्या करती हो, उस पर मैं एक चर्चा करूंगी शॉर्टकट। मैंने 1997 और 8 में मालदीव में इंपोर्ट मैनेजर के लिए पहला मेरा जॉब था एज इंपोर्ट मैनेजर। तो जब उन्होंने मुझे हायर किया तो मैंने उनसे एक शब्द बोला कि आपने इंटरव्यू HR मैनेजर का लिया था और आपने जॉब मुझे इंपोर्ट मैनेजर का दे दिया जिसकी मुझे ABCD नहीं पता। आई डोंट वांट, प्लीज मुझे असिस्टेंट रख लो आप। तो बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ इंपोर्ट मैनेजर लड़की ही होती है और लड़की को ही रखेंगे। अरे मैंने बोला आई डोंट नो ABCD, इफ समथिंग मिस्टेक, और 25 पीपल वर्किंग अंडर, I can't sign any contract without knowing anything. So they said, we will give you training 1 month, so you should learn anything. And I learned training within 15 days. And I become expert of the all import and export. And I was handling 95 countries in the world that time. वहाँ से जो पब्लिसिटी मिली, मेरे को सारी फैसिलिटीज मिली थी, उस समय पूरा इंटरनेशनल कॉल फ्री मिला हुआ था। When I decided to leave this country, Maldives, then I decided I cannot fit for India. Then I applied 90 countries job. जो मेरे क्लाइंट थे, Huda, Snyder, ऐसे क्लाइंट थे मेरे। इंडिया से मैं इंपोर्ट करती थी शैंकर सीमेंट, यहाँ का साउथ इंडिया का है, एंड स्नाइडर, ये सारे क्लाइंट जितने भी बड़े बड़े थे सबको बोला CV, I need a job, I need a job. And I got a telephonic interview in Dubai and I selected for general manager HR. And I worked there as I was the highest qualified woman in a global glass factory. I worked maybe 2012 one of the British company, and 2013 I decided to open my own company. That company I worked for 2 years. One of the biggest company, I can say one only company, biggest Arabian publication. वो company जब join की, they hire me just like because of my attitude. She's smart. Just hire me like that because I have very good connection all over the world. 200 business council, like a British Business Council, American Business Council, Swiss Business Council. Because I was working British company, that's the reason I have a company send me everywhere. I cannot go for this kind of business council. Each business council, each meeting, a charge is a $500 for one meeting. दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मुल्क में पैदा हुए हो, जब तक आप माइग्रेट नहीं करेंगे अपने जगह से, जो आपकी एक पैतृक जगह है जहां आप पैदा हुए हैं, माइग्रेशन का दूसरा नाम डेवलपमेंट होता है। रिस्क है, माइग्रेशन में रिस्क है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, चाहे आप एजुकेशन के लिए माइग्रेट करें, चाहे जॉब्स के लिए माइग्रेट करें, बिजनेस के लिए माइग्रेट करें, माइग्रेशन के साथ डेवलपमेंट जुड़ा होता है। हालांकि एक और बात है कि जो जितना माइग्रेट करता है और जो जितना ग्लोब ट्रॉटर होता है वो उतनी तरक्की भी करता है। इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, रिसर्च बेस्ड। तो अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो जरूर करिए, इससे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन होता क्या है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। पीपल आर वांट टू कंफर्ट जोन। आई विल टेल यू, the day I decided to leave this country, I was almost lost everything in my life. I was running my business, you know, Orange Tree Garden, नागपुर में मैंने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया था, इंडिपेंडेंट, किसी के साथ पार्टनरशिप में, नाम लेना नहीं चाहती। Then I lost everything. I have only 30,000 rupees in hand, and I realized how to survive. Then मुझे लगा क्या बोलते हैं इसको, What I will lose, लॉस करने को कुछ भी नहीं बचा है। आप सड़क पे जब आ गए हो, क्या होगा? देखिए, कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपको छू नहीं सकता।
गोली नहीं मार सकता, और आप ज्यादा से ज्यादा भूखे नहीं मर सकते जब तक आपके पास पैसे हैं। तो द वन गाय इन दिल्ली Muslim community, he is still my brother. He helped me to buy a ticket. I said, no, I can buy a ticket, but I don't want to buy a ticket because I have only 30,000 rupees. So he said, you're my sister, I'll buy a ticket for you, you go. He's the one who buy a ticket for me. Still he's my brother. And I told him, whatever you need in your life, I'm always there for you. तो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। मेरी जिंदगी की पहली सैलरी उसको लाके देखिए मित्रों, ये जो जितनी भी जो जिनको कहते हैं आइडेंटिटीज होती हैं ह्यूमन बींग्स की, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे वो नेशनलिटी के आधार पर हो, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, चाहे वो रेस के आधार पर हो, ये आपकी ह्यूमैनिटी को कम करती है। अगर आप फुल ह्यूमन बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की जो पैरोकियल आइडेंटिटीज है उनसे ऊपर उठना होगा। एक बड़ी बात है रेनू में कि वो जो रिलीजन की जो कम्युनल बाउंड्रीज है या जेंडर की जो बायोलॉजिकल बाउंड्रीज है या फिर नेशन की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनसे ऊपर उठ करके एज ट्रू ह्यूमन बीइंग सोचती है। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो रेनू से ये बात सीखी जा सकती है कि कैसे हम इन छोटी छोटी अपनी जो पहचान है, अस्मिता है, इनसे ऊपर उठ करके हम एज ए ह्यूमन बीइंग सोचें। इसको हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर तो मुझे लगता है, मुझे यूएस में मैं चैनल खोलने जा रही हूँ, मुझे लगता है आपको परमानेंटली जब आप रिटायर हो जाएंगे ना तो यू विल बी टीचर नेवर रिटायर। समझिए आपका जो बात करने का जो वो है ना संदर्भ से जिस तरीके से आप करते हैं, वंडरफुल। अरे नहीं, ये देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, रेनू से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रेनू को जिस आदमी के अंदर जो फीलिंग्स होंगी उसको वैसी नजर आएगी। जैसे कहा जाता है ना कि जिसके अंदर जैसी भावना होती है उसको प्रभु की मूरत वैसे दिखती है। आप जैसे जैसे अच्छे इंसान होंगे आपको उतनी उतनी अच्छाई रेनू में दिखेंगी। मेरे अब तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं, और अगर मुझे ये कहा जाए कि मेरी बेस्ट स्टूडेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज तो वो रेनू है। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गोल्ड मेडल लाए, जो आईएएस बने, आईपीएस बने, एंटरप्रेन्योर हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत मुश्किल होता है। जो छोटी छोटी पहचान से, बंधनों से, इनसे मुक्त होकर के जो उन्मुक्त लाइफ जीता है, जो बंधनों से परे होता है, वही फ्री है असली में। लाइफ इज वेरी शॉर्ट सर, वी डू नॉट नो वी वेक अप टुमारो और नॉट। ओके, इंडिया में क्या है वो देखते हैं, अरे तुम छोटी जात के हो, हम बड़ी जात के हैं, मेरे पास 50 लाख है, तुम्हारे पास 50 मिलियन है, तो मैं ये हूँ। अच्छा अच्छा, क्या होता है इंडिया में, अच्छा ये छोटी जात के लोगों का मोहल्ला ये है, बड़ी जात के मोहल्ला का ये है। अच्छा यूएस में ऐसा नहीं है, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। जहाँ हम रहते हैं, मेरे घर के ठीक सामने जज का घर है, मेरे घर के ठीक बगल में बिजनेस, ऑयल इंडस्ट्रीज के बिजनेस हैं, मेरे घर के ठीक बगल में हस्बैंड वाइफ हैं, पर वो कम पढ़े लिखे हैं, क्लीनर है, साथ साथ रहते हैं हम लोग। वहां पे ऐसा है ही नहीं। दोस्तों, जैसे ये जाति के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप बाहर के हैं, इफ यू आर ए व्यूअर ऑफ दिस चैनल फ्रॉम एनीवेयर बियॉन्ड इंडिया, I tell you that caste is a kind of social structure in India, a hierarchical, graded inequality kind of system. You know, the whole population of India is divided into around 7,000 castes. Exactly speaking, 6,743 caste groups. These are the groups, and if you are born in a particular group, you always remain in that group, and you will have to marry in that group. And because of that, you know, girls and boys are forced to go for arranged marriage, and arranged marriages always result into the caste marriages. So caste, you know, is always binding for your marriage in India. People are not free to marry outside their caste groups. And besides this, you know, there are certain social groups,
you know, these 6,743 castes are divided into 4 larger groups, and the first group is treated so-called the purest one, and the last person or the last group that is at the bottom of the pyramid is treated as the untouchable, unseeable, That's very bad. interactable, and this is the ugliest part of Indian society. And Renu has broken down these ceilings, these boundaries, because to break down the caste boundaries in India, it is impossible. You see, I'm sitting this family, they are Rajput family, and they never asked me from my childhood I belong to which caste. My other friend is also Rajput. I never asked my students, even We still, never ask each other. still I don't know the caste of Renu, never, and it doesn't matter. And I have my 3 friends, I'm living here. But in India, you would find the people. That's the If one person asks your identity, he is asking or she is asking your caste, and your caste will decide what kind of social interaction you will have that person. What kind Some of people I know, I met some people in US, like people say, and caste has been exported from India to US also. नहीं जो इंडिया के No, Indian executives who are employed in big multinational companies, I'll tell you they practice this kind of casteism in giving jobs to other Indian groups. They go for, because there was some discrimination case in US also, Cisco companies. And, oh my God. Yes, and now many universities in the US have also classified this as a protected category. Caste has also been included as I was not aware about. US is not having this system, I will tell you. No, Indians who have migrated to the US, I met many Indians in US, they are not like that. listen, actually if your boss is Indian in a multinational company, this is research. Maybe, but I don't know. I met many Indians, they never asked. No, they don't ask, but if you are given employment, if you work under them, and if that person doesn't happen to be your caste, then most probably he or she will discriminate you on that basis. It's a crime in the US. No, caste is not a protected If somebody category. racist in US, they will... No, race and caste are not, treated equal. Yeah. So, caste is never considered as a basis of discrimination under the Human Rights Declaration of the United Nations. And besides, in US, people don't know caste. But it doesn't mean that caste doesn't exist. It is a notion. It is at consciousness level. Yeah. It is at ideational level. Go by rich and poor. The rich like to keep the rich. They don't like their social rich class. and poor are classes. Okay, I can. That is everywhere in the world, No, actually. Yeah, that will remain. pretty much. Because that kind of relative poverty or relative eliteness will always remain there. But, in India, caste is that whatever millionaire and billionaire you are, Yeah, no matter. But no if matter, you if you are born into a very lowly caste, Ah. then you will always be treated as low. Yeah. When the president of India is a person from that group at the bottom of the pyramid, he was not allowed to enter in the sanctum of a temple. It's a mentality. I will tell you example. No, it's not mentality. It's a kind of maintaining the hegemony and the rule, the privileges of Look, certain if sections. we teach our children from the home, they don't know what that actually. Like if you ask my son. No, caste is a social invention. It was invented to maintain the status quo, to maintain the rule of certain groups over the lower groups. Look, you are Hindu, you are Hindu. You are Muslim, you are Muslim. You are Christian, you are Christian. This is enough. I think it started with royalty. This kind of system, Royalty. religion, that monotheistic religion like Islam and Christianity, they are different kind of religions. Hinduism is polytheistic, and Hinduism is confederation of various gods and goddesses. It is a social system. Hinduism means casteism. Hinduism, the basic identity of Hinduism is caste. If you don't belong to caste, you don't belong to Hinduism.
if you belong to Hinduism, it means you must belong to a caste. So caste and Hinduism are synonymous. Without caste, nobody can be Hindu. And yes, because this is what is written in the Rig Veda, 10th mandal. And Rig Veda, actually, I will tell you. In Manusmriti. Manusmriti, whatever Rig Veda, what is Manusmriti? What is that? It's written by whom? Actually, Rig Veda has been written by many rishis. Yes. And this Manusmriti was written by one Brahmin, Yeah. Sumit Bhargav. Okay. Bhargav. Yeah, And but he was a Brahmin. Before So this this is not the way actually. If you see the Ramayana written by Valmiki and written by Tulsidas, totally different. Tulsidas, what is called, he born later, and Valmiki was the time of the Ram. He saw Ram face to face. So Valmiki means Ramayana has become vanished. Okay. So which Ramayana you believe? I believe Valmiki Ramayana actually. No, there are more than 300 Ramayans in India. No, I don't care other Ramayana. The 300 Ramayana only belongs to Valmiki. It's not the way. 300 or 400. कोई भी उल्लू आगे लिख लेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? गधे भी आगे बन जाए, डॉक्टर लिखा दे. अरे डिग्री लेने से कोई डिग्री वाला नहीं बन जाता. Okay, this is a matter of your The fact faith. is, no, faith is different. Fact is different. The fact is, Ramayana means Valmiki. उसके बाद कोई नाम ही नहीं है. Fact is fact. ये fact है कि नहीं आप बताइए. Ramayana written by Valmiki, yes or no? Yeah, that is fact. That is fact. उसके बाद कितने भी लोग आए, मैं भी लिख दूं, आप भी लिख दो, क्या रामायण बन जाएगी? ऐसे नहीं होता ना. Exactly, I believe fact. I don't believe वो आपने बना दिया, इससे बना दिया, अभी ऐसे नहीं होता ना. Fact is fact. अब इसका फैक्ट निकालो ना. मनुस्मृति किसने लिखी है? कोई नहीं निकाल पाएगा. No, Mr. Sumit Bhargav wrote. अरे तो किसी पंडित जी ने लिख दी ना अपने भले के लिए. No. ऐसे It नहीं was a होता. law of India. It was a law of before India. this constitution. देखिए, Constitution of India not only written by one person, what is called क्या नाम है उनका, इनकी एक बड़ी कमेटी थी. उसकी कमेटी के जो मुखिया थे, क्या नाम है, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर. तो ही वॉज नॉट ओनली द वन पर्सन हु इज अ डिसीजन मेकर. ऐसे ही अगर मनुस्मृति को लिखा जाए तो उसकी प्रॉपर कमेटी बनाओ ना, सारी जाति के लोगों को बिठाओ ना, तब उसको माना जाएगा. अब संविधान को केवल एक आदमी ने नहीं लिखा है. संविधान का डिसीजन एक आदमी ने लिया है, पर लिखा कई लोगों की, पूरे वर्ल्ड के संविधान को देख देख के नकल मार के लिखा गया है संविधान. खैर ये चर्चा काफी बड़ी है. सही. एकेडमिक डिस्कशन हो जाएगा ये, और एकेडमिक डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहते. नहीं, और टाइम नहीं है. और नहीं. दूसरी बात यह है कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स के विपरीत बातें हैं, और हमारे व्यूज एकदम अलग है. रामायण पर भी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अलग है, मनुस्मृति पर भी अलग है. और वो एकेडमिक व्यूज है, रिसर्च बेस्ड है. और जो फिर कभी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सेमिनार होगा, वर्कशॉप होगा, कोई लेक्चर होगा एकेडमिक, तब वो बोले जा सकते हैं. उसमें तो इस चर्चा पर नहीं है ना. और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी बात है. और मैं आपको बता दूं, मेरे मन में एक जो बात चल रही थी कि मैंने 3 और 4 MSW को ही फोन किया. उनमें से आपका बड़ा गर्मजोशी के साथ यहाँ आना हुआ, बहुत खुशी हुई. और मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं MSW का जो ग्रुप है ना, उनमें से मैं अपने आप को आई एम गोइंग टू डिलीट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे रेनू, हाँ, मैं केवल आपने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया इस वजह से, नहीं तो मैं जितने भी ग्रुप्स हैं, हाँ, आप नहीं इतने सब स्टैंडर्ड मेंटेलिटी के लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. यस. और मैं जब पढ़ा करके MSW स्टूडेंट्स को भेजता हूँ, किस प्रकार से उनका डिटीरियोरेशन हो जाता है, किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों में वो बंध जाते हैं. देखिए, आप एक बात बताइए, आप MSW, मैं MSW, हम जूनियर सीनियर जब पढ़ते हैं, जब होते हैं, जब हम निकलते हैं तो हम सब दोस्त होते हैं, है ना. आपको मैं बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी. जब कोविड के टाइम पे बहुत बुरा हाल इंडिया में चल रहा था, तो मैंने 5 या 6 MSW को सिर्फ इसलिए फोन किया था, सीनियर्स को, कि आप ठीक तो हैं. तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उनपे मैं लाइन मार रही हूँ. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रही हूँ. ओके, बाद में बात करूंगा. अरे बात पूछ रही हूँ, आपका हेल्थ तो जिंदा तो है, मर तो नहीं गए, आपकी बीवी तो नहीं मर गई, बच्चे तो नहीं मर गए, नॉर्मल सी बात है यार. और ओपनली बात करने में बोल दो, हाँ रेनू सब ठीक है, थैंक यू वेरी मच. USA व्हाट्सएप कॉल नहीं किया, कॉलिंग वाला कॉल से किया मैंने.
आप सोचिए कॉलिंग में इंडिया में इतने कंजूस लोग हैं, कॉल तो क्या, मैं दिल्ली में हूँ, इंडिया में हूँ, मेरे को किसी ने एक मैसेज नहीं भेजा। कुछ लोगों ने भेजा वेलकम टू इंडिया, जैसे इनके बाप की इंडिया है। अरे इंडिया मेरी है, वेलकम कर रहे हो तो कॉल भी करो ना। मैंने तो वेलकम टू योर मदरलैंड लिखा। यस, आप कॉल किया, आप मुझसे मिलने आए, इसको अब बताओ। मैं तो कहूंगी एक मैंने शब्द तुमसे है। डिनर की भी बोला था, लेकिन कोई बात नहीं सर, आपने तो डिनर से बढ़कर यादें दे दी। और मैं एक बात बोलूंगी, एक ही हमेशा कि दोस्तों रहने दो दस्तूर निभाते क्यों हो, दोस्तों रहने दो दस्तूर निभाते क्यों हो, दिल तो मिलता ही नहीं हाथ मिलाते क्यों हो। फिर MSW का है कि भैया ग्रुप में क्यों बैठे हो, जब एक दूसरे से आप साथ रह के, एक शहर में रह के और एक कंट्री में रह के फेस टू फेस मिल ना पाओ। हमने तो किसी से मांगा ही नहीं है कभी कुछ। ओके, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है, पर लोगों में ये रहता है हम क्यों है ग्रुप में। हाँ, MSW आप उस ग्रुप से पहले मुझे डिलीट करोगे, नहीं, उसके बाद तुम डिलीट हो जाना। नहीं, पहले तो आप मैं जो लीड ग्रुप है ना, करूंगा। वो जो ग्रुप है वो तो बनाया हुआ मेरा है। ओके, उसको मैं थोड़े दिन रखने से पहले ये जो वीडियो है ना मैं जरूर डालूंगी। नो नहीं, आई वांट टू एक्सप्रेस माय अभिव्यक्ति, मुझे मेरी अभिव्यक्ति का राइट है, मैं डाल सकती हूँ, कह सकती हूँ। ओके, और बाकी के जो दूसरे ग्रुप नहीं, है कोई वो बात चल रहे नहीं। हैं वही गुड मॉर्निंग लिख दिया। अरे कभी गुड मॉर्निंग फोन पे भी बोलो, अरे ऐसे लिख दिया, अरे कभी एक बार वीडियो कॉल भी करो यार। ऐसा है रेनू, आपके जो होस्ट लोग हैं, है ना, नहीं, ये इंडिया मेरे के मित्र साथ- लोग हैं, देखिए हाँ। ये मेरे सारे मित्र लोग हैं और ये मुझसे सब प्यार करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं दोस्त बहुत नहीं बनाती, बात बहुत लोगों से करती हूँ, जिससे दोस्त बनाती हूँ उस पर पूरा अधिकार रखती हूँ, उसको पूरा अधिकार देती हूँ, पर मौका मैं सबको देती हूँ। एक बार कल का क्या क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कल ताजमहल जाएंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और आप भी हमारे साथ आ जाना मौका मिले तो। Mr. Rayan, have you ever seen the Taj? Or this is for the first time you have come? Yes, this is the first First time. time. Okay.